ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਅਸਥਾਈ ਵਾਕ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर ऐसी शक्ति जो जड़ नहीं चेतन है, जागी हुई है। और उसी शक्ति विच जन्म, जीवन ते मरण चल रहा है। ये तीन शब्दां दा जोड़ आकार, उकार, मकार, भाव, ओंकार। हिंदुस्तानी परंपरा दे जितने भी धर्म ने ओंकार नूं मूल धुनी मनदे ने, ब्रह्मंड दी धुनी मनदे ने, परमात्मा दा पहला वाक मनदे ने। यही शब्द होया, यही धमाका होया जिस तो सारा जीवन बनया। कीता पसाओ, एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे ये जो दरिया चल पे, इसे ही धुन तो लखां तरह दा जीवन। किधरे सूरज दे दरिया, कई सूरज, किधरे कई चंद्रमा, कई कोट ससियर, सूर निखत्र। तो वो जो एक है ओंकार है। और वो ओंकार जो है वो सत है, मिथ नहीं है। सत तो मुराद सदीवी है, कायम दायम है, होंद वाला है। वो है, वो सत है, मिथ नहीं। जो सच्चाई होंदी उसनों असीं कह देने है, तो जो सच्चाई नहीं होंदी उसनों असीं कह देने नहीं है। जो नहीं है फिर भी भासे, फिर भी कोई उसकी चर्चा करे तो कहते ने ये मिथ है, सत नहीं है। तो महाराज कहते ने वो जो एक है ओंकार है, वो जो ओंकार है वो सत है। वो जो सत है उसका नाम सत है, उसकी हस्ती सत है, उसे दा ही नाम है। क्योंकि उसका नाम अमिट है, सत है उसका नाम, और हर नाम दे चो प्रगट होता है। वो किसी की भी कृत नहीं है, वो एक करता है। और वो एक ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च बैठा होया है, अपनी कृत तो वख नहीं है। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई, तस्वीर किसी दे घर है, मुसव्वर अपने घर बैठा है। सुनार ने गहने बनाए ने, गहने किसी दे गल दे च ने, सुनार अपने घर दे च बैठा है। करता कृत दे नाल नहीं आउंदा, करता कृत दे विच भी नहीं आउंदा। तो जो करता कृत दे विच नहीं है, जो करता कृत दे नाल नहीं है, गुरबाणी उसनूं करता नहीं मनदी। वो भी एक कृत है। करता पुरख, पुरख पूरे होया, पुरी पुरी बसंता सपुरखा। वो ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च पूरे होया है, बैठा है। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। अखंड रूप दे च व्यापक है, खंडित नहीं है। ये नहीं कि 10 मील तक है तो अगों 10 मील नहीं है, फिर अगों 2 मील तक है तो अगों 50 मील नहीं है। इस तरह नहीं है। अखंड एक सार, किधरे भी वो टूटता नहीं है। और एक व्यापक सत्ता है, अखंड।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਐਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੈਭੀਤ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਲ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤਲ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੇ ਤਲ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਅਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੌਤ। ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ। ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮੌਤ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ, ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਵਾਸ, ਅੰਦਰ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸਨ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਗਰਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਠੀਕ, ਕੰਨ ਵੀ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਗਲ, ਸੁੰਨ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ
ग्रास का प्रभाव रुक जाए तो शरीरक मौत, विचारां का प्रवाह रुक जाए तो मानसिक मौत। एक होर मौत है जिस नाल सब कुछ ही समझ लो मुर्दा मनुख दा। रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत, धार्मिक मौत। परमात्मा की याद चले तो जीवन है, ना चले तो मौत। आखां जीवा बिसरे मर जाऊं, मरणं बिसरणं गोबिंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। गुरु अर्जन देव जी। मौत है उसनों भुल जाना, जिंदगी है उन्हों याद करना। केड़ी जिंदगी? रूहानी। हो सकता है बंदे कोल आर्थिक जीवन होवे ते रूहानी जीवन ना होवे। हो सकता है रूहानी जीवन होवे पर इस कोल परिवारक जीवन नहीं। बथेरियां कोल नहीं सी, महावीर कोल नहीं सी। भरतरी ने परिवारक जीवन नूं एक पासे सुट दिता। महात्मा बुद्ध कोल भी नहीं सी। राजनैतिक जीवन भी नहीं सी क्योंकि राजनीति नूं ठोकर मार दी। आर्थिक जीवन भी नहीं सी क्योंकि दर दर भिक्षा मंग के अपनी उपजीविका चलाते सन। लेकिन रूहानी जीवन सी। अगर रूहानी जीवन है तो गुरबाणी भी मनदी है ये मुकम्मल जी रहा। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। ईश्वरी याद नहीं चल रही, इदा खाना पीना पहनना सोना सब हराम। कुछ भी हलाल नहीं है, सब हराम। सब हराम जेता किछ खाए। जितने पदार्थ, जितने सुख, जितना दुनियावी अडंबर सब हराम, हलाल नहीं है। हलाल ते हराम नो अगर इस दृष्टिकोण नाल देखोगे तो गुस्ताखी माफ। किधरे किधरे कोई हलाल दिखाई देगा, सब हराम, गुस्ताखी माफ। मैं पंक्तियां फिर थोड़े सामने रख दिया। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे खोए, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सब हराम है। जो कुछ भी हंडा रहे है, खा रहे है, पी रहे है, जो कुछ भी वरतों वलेवा कर रहे है, सब हराम। अगर मन विच उसकी सिमरती चल रही है तो फिर सब हलाल है, फिर सब जायज है, सब ठीक है। अगर उसकी सिमरती नहीं चल रही थी, उसकी समझ नहीं चल रही, तो जो कुछ भी है सब हराम है। भाई साहब, भाई नंदलाल का एक वाक चेते आ रहा है। आप कहते ने गम चे बाशद, गम किसनू कहोगे? दुख की है, किसनू आखोगे दुख? तो इत्थे एक प्रश्न पैदा होता है, क्या मनुख नूं इतना भी नहीं पता जो भाई साहब प्रश्न पे करते हैं? ठीक कर रहे ने प्रश्न भाई साहब, भाई नंदलाल। मनुख नूं नहीं पता। यकीन जानो, मनुख नूं दुख दा भी ज्ञान नहीं, मनुख नूं सुख दा भी ज्ञान नहीं। ये गल वखरी है, कदी दुखी हो जाता है, कदी सुखी हो जाता है, पर दुख सुख का इसनूं ज्ञान नहीं है। दुख सुख की इसनूं समझ नहीं है, इसनूं पता नहीं है। तदी भाई साहब कहते ने गम चे बाशद, दुख की है, गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। शादी दे अर्थ ने खुशी। ईरानी भाषा का शब्द है। किसी का दिल बड़ा खुश होवे तो कह दिता जाता है, ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा शाद है, खुश है, प्रसन्न है। ई खाना शादी अस, इस घर विच बड़ी खुशी है। शादी दे अर्थ विवाह नहीं है, खुशी। विवाह लई उन्हां कोल शब्द है, फलाने दे घर निकाह हो रहा है। शादी खुशी, चीज तो शादी खुशी की है। तो भाई साहब आप ही जवाब देंदे ने, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। बस परमात्मा की याद तो गफलत करनी, यही गम है।
और कोई गम नहीं। यही दुख है, ये बीज है दुखां दा। हुण सारे दुख पैदा होणगे। अगर ईश्वर नूं भुले हैं, ये भुल जाना ही दुखां दा बीज है। सारे दुख पैदा होणगे। किन्ने? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। सारे ही पैदा होणगे, एक नहीं, सारे ही पैदा होणगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। चीस्त शादी याद आबा मुंतहा। खुशी की है उस ला इंतहा परमात्मा नूं याद करना। गम की है उसनूं भुल जाना। तो एक रूहानी मौत है जो सब कुछ नूं मौत विच बदल देंदी है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। कहंदे ने जितने चिर तक ये रूहानी जीवन मनुख नूं ना मिले, जीवन भर और अनंत जीवन, बार बार जीवन मिलता रहेगा, लेकिन जीवेगा मौत दे भय दे। कभी जीवन नूं जी नहीं सकेगा। एक दिल दिमाग दे उत्ते बोझ रहेगा मौत दा। किधरे आर्थिक मौत ना हो जाए, किधरे समाजिक मौत ना हो जाए, किधरे राजनैतिक मौत ना हो जाए, किधरे मानसिक मौत ना हो जाए, किधरे शारीरिक मौत ना हो जाए। मौत ना हो जाए, बस यही गम, यही दुख, यही बोझ दिल दिमाग ते रहेगा। सिर्फ शारीरिक मौत नहीं, काश मौत एक तरह की होंदी। मौत तो कई तरह की है और मनुख डरे होया है कई तरह की मौत तो, और उतने चिर तक ये डर रहेगा जिन्ने चिर तक रूहानी जिंदगी नहीं मिलती। रूहानी जीवन की उसकी याद ते रूहानी मौत की उन्होंने भूल जाना। आखां जीवा बिसरे मर जाऊं, मरणंग बिसरंग गोबिंदे, जीवनंग हर नाम ध्यावणे। तो खैर मुख्तसर वो ऐसा करता है अपनी कृत दे च पूरे होया है। भय तो रहत है, वैर तो रहत है। हुण अगे सतगुरु कहंदे ने समय तो रहत है, काल तो रहत है। काल दा मतलब है समा। अकाल जिहदे च समा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। ये हैरानगी होगी। थोड़ी जी बस मैं इसकी व्याख्या आप जी के सामने रखन लगा। भगत कबीर कहंदे ने दिन सुरैण वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नर तिसे दयावो, बावरिया संसारा। दिन रात जिहदे च नहीं है। समय नूं नापण दा ढंग साडे कोल दिन ते रात है, और किस तरह नापांगे? अगर दिन ठहर जाए, रात आवे ही ना, किवें नापांगे? अगर रात ठहर जाए, दिन होवे ही ना, फिर समय नूं किस तरह नापांगे? कबीर कहंदे ने प्रभु दी दुनिया दे च समा नहीं है, दिन ते रात नहीं है। कलगीधर पिता इंज कहंदे ने अकाल है अजाल है। परमात्मा अकाल है, समय तो रहत है कि समय दा वक्त दा जाल उस दे उत्ते नहीं है। अकाल है अजाल है। जाल की है जिस दे च मनुख फसिया होया है। जाल काल दा ही है, समय दा है, वक्त दा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी इस तरह ही जो है फरमान करते हैं। गुरबाणी विच काल दा मतलब समा, वक्त, और हर मनुख वक्त दे च फसिया होया है। हर मनुख कोल वक्त समा वो कुछ करा लैंदा है जो कुछ इसनूं नहीं करना चाहिए। हर मनुख समय की गिरफ्त दे च है। अकाल दा चिंतन इस वास्ते है कि काल दे जाल तो निकलिए। काल जाल जम जोहो न साके, सच का पंथा थाट्यो।
पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखी जाना। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा थाटियो। पंथ कहते ने रस्ते नूं। असी ऐसे सच दे पंथ ते चले आ, सच दे रस्ते ते चले आ, हुण काल दा जाल सानू वेख भी नहीं सकदा। काल जाल जोहना कहते ने वेखण नूं, नहीं वेख सकदा। असी काल दे जाल दे च नहीं आ। वक्त साडे कोल कुछ नहीं करा सकदा। उंज हर मनुख वक्त दी कैद दे च है, समय दी कैद दे च है। जो कुछ मनुख नूं होना चाहिदा सी, समय ने होण नहीं दिता। इनू गुरु नानक देव जी महाराज खोल के इंज कहंदे ने, जाली रैण जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई देती। दिन भी जाल है, रात भी जाल है। कोई इस वास्ते दिन जो है नितनेम नहीं कर सकिया, नाम नहीं जप सकिया, दिन दियां मजबूरियां। कोई इस वास्ते नाम नहीं जप सकिया, बंदगी नहीं कर सकिया, रात दा गलबा। तो रात भी जाल बन गई, दिन भी जाल बन गया। तो महाराज कहते ने, छूटस मूड़े कवन गुणी। ऐ मूड़ तू बचेगा किवें, निकलेगा किवें, फसे होया है तू, दिन दे च फसे होया है। सारा दिन तेनू रब नाल नहीं जुड़न दा मौका मिलदा, सारी रात तेनू जुड़न नहीं देंदी। गुरु नानक दे बोल, जाली रैण जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती। दिन रात दी हर घड़ियां फाइयां बणियां, मनुख फसदा ही जा रहा। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मूड़े कवन गुनी। फिर सतगुरु इत्थे मूड़ कहंदे ने, ऐ मूड़ किवें बचेगा, किवें छुटेगा। ऐसा तेरे ते दिन गलबा पांदा है, और ऐसा तू फसदा है दिन दे च, समय दे च, काल दे च। मजाल है तेनू अकाल चेते आवे। और ऐसा रात गलबा पांदी अपने ढंग दा, मजाल है तेनू अकाल चेते आवे। तू काल दे जाल दे च है, काल जाल। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, हे परमात्मा अकाल है अजाल है। तू अकाल है, इस वास्ते अजाल है। तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है, समय दा जाल नहीं है। तू समय दे च फसिया होया नहीं है। हुण जिस मनुख दी वासना बहुत लंबी होवे, इच्छावां बहुत ने, तो हुण अज दे ते पूरियां होण नहीं लगियां। कामना बड़ी लंबी, वासना बड़ी लंबी। तो इस तरह का मनुख हर वक्त भविष्य दे च जीवेगा, आने वाले कल दे च, वो अज दे च नहीं। तो नाम ते अज जपना है, कीर्तन ते हुण तू सुनना है, गुरुद्वारे ते तू हुण आया है, सेवा ते तू हुण कर रहे हैं, बाणी तो हुण पढ़ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु ते हुण तू जप रहे हैं। लेकिन वासना इतनी प्रबल है, कामनावां इतनियां ज्यादा ने, अज पूरियां नहीं होण लगियां। तो कामना गुजर आने वाले कल दे च मनुख नूं लै जांदी है। मनुख अज दे च नहीं हुंदा, आने वाले कल दे च जींदा है। भविष्य दी चिंता। जे कदी कदी भविष्य की चिंता ना होवे, यादां पिछे लै जांदियां, कामना अगे लै जांदी है, यादां पिछे लै जांदियां। फिर मनुख माजी दे चला जांदा है, भूतकाल दे चला जांदा है। अगर कोई आखे ना मेरा मन नहीं टिकदा, तो किथे गया? या तो गुजरे हुए कल दे च चला गया, या आने वाले कल दे च होर किथे गया। मनुख समय दे प्रभाव हेठ जी रहा है। आने वाले कल दा इतना गलबा, अज दी फिक्र नहीं। गुजरे हुए कल दा इतना असर, इतना दबाव, अज दा कोई ख्याल नहीं। ते बंदे कोल जद भी होंदा है अज ही होंदा है। ना आने वाला कल हथ दे च है, ना गुजरिया होया कल हथ च, किसी दे भी नहीं है। कभी बगौर मुताला करना।
ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀਸਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭਵਿਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਦਮ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀਸਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਇੱਕ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਦ। ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਜੋ ਦਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਦਮ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚ ਕਦੀ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਕਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਉਧਾਰ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚ? ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ? ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਮ ਦੇ ਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ।
असी तो इस दे जीवते हैं। हम आदमी आ एकदम ही मोहलत मौत न जाना। वो एकदम जो मूंह दे है बस इसे ते भरोसा कर सकते हैं, बाकी ते नहीं। आमना भी है कि नहीं, ते जेड़े दम चले गए वो चले गए, ते आने वाले ने आना भी है कि नहीं। मर्दाने असी तो इन्ना ही भरोसा कर सकते हैं जिहड़ा दम मूंह दे है, बस इन्ना ही, इस तो ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब है नकद जिंदगी है, अज दे जी रहे हैं, उस दम दे जी रहे हैं जिहड़ा दम मनुख दे मूंह दे है। आम लोग इस तरह नहीं जीवते। दम मूंह दे है ते दम किस तरह लंघ गया, गुजरे हुए दमां दी यादां दे दम लंघ गए, आने वाले दमां दी चिंता दे दम लंघ गए, मनुख जी नहीं सकिया। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। वास्तविक जो भगत मनुख है वर्तमान दे अज दे जीवदा है, क्योंकि अज नकद है, अज कोल है। आने वाला कल हाथ दे च नहीं, गुजरे होया कल हाथ दे च नहीं। तो अक्सर मन चला जाता है भूतकाल दीयां यादां दे, मन चला जाता है भविष्य की चिंता दे, मन चला जाता है गुजरे हुए कल दीयां यादां दे, मन चला जाता है आने वाले कल की चिंता च। या मनुख अतीत की याद दे च बैठा है, या मनुख भविष्य की चिंता दे च बैठा है। चाहे कथा हो रही है, चाहे कीर्तन हो रहा है, चाहे बाजार दे च बैठा है या परिवार दे च बैठा है, मनुख जिथे बैठा है या गुजरे हुए कल दे च बैठा है या आने वाले कल दे अज दे च नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब बाजार दे च बैठा है तो गुजरे हुए कल नाल आने वाले कल नाल जुड़े हुआ है। ये गुरुद्वारे भी मंदिर मस्जिद दे च इसे करके ते समाधि नहीं लगती, इसे करके ते रस नहीं। कीर्तन हो रहा होंदा है, मन गुजरे हुए कल दे आने वाले कल दे, वो तो अज इत्थे है ही नहीं, तो रस कौन माणे। अगर अज दे च मन जीवे तो मन मिट जाता है। मन दे मिटदियां सारियां वासनावां मिट जांदियां ने। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए। वासना ते मिट गई, वासना मिट गई तो भविष्य मिट गया। इतनी लंबी वासनावां ने मनुख दे कोल अज नहीं पूरियां हो सकदियां। तो जीवदा है भविष्य की चिंता दे, पता नहीं कल पूरी होवेगी कि नहीं, सिरे चढ़ेगी कि नहीं। और आज इतना दुखदाई व्यतीत हो रहा है कि कई दफा मनुख अतीत दियां यादां, गुजरे हुए कल दियां यादां दे जीवदे। अक्सर बुढ़े बचपन नूं याद करदे ने, गुस्ताखी माफ। पता नहीं कितने बुजुर्गों कोल बैठ के मैं बचपन दियां ही गल्लां सुनियां ने उन्हां कोल। 10 बुढ़े जिथे बैठे होण, यकीन जानो बचपन दियां गल्लां करनगे। तो इसका मतलब है जवानी गलत व्यतीत कीती है, बुढ़ेपा गलत है, ताई ते बचपना याद आ रहा है, वरना नहीं याद आना चाहिए सी। वरना बुजुर्गी बड़ी महान उम्र है, जिंदगी भर दियां गलतियां बहुत कुछ सिखा सकदियां मनुख नूं। लगता है गलतियां तो भी नहीं सीखिया, नहीं सीखिया, और मैं देखे ऐसा नहीं सीखिया मनुख। यही कारण है कि 90% बुढ़े बचपन नूं याद करन लग पैंदे ने, बचपना महान सी, बड़ा महान सी, बेफिक्री सी, कोई जिम्मेवारी नहीं सी। हर तरह की जिम्मेवारी मां बाप ने चुकी हुई सी, जिम्मेवारी नहीं सी, कोई चिंता ही नहीं सी, बेफिक्री सी, खेड़ा ही सन। ना धार्मिक जिम्मेवारी, ना समाजिक जिम्मेवारी, ना आर्थिक जिम्मेवारी, ना राजनैतिक जिम्मेवारी, किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं। बच्चे नूं दुनिया के किसी भी मुल्क दे वोट पाने का अधिकार नहीं है, नाबालग ना, तो राजनैतिक जिम्मेवारी तो भी बेलाग हो गया। किसी तरह का बोझ ही नहीं, खेड सकता है, हस सकता है, किलकारियां भर सकता है। तो बचपना अक्सर बुढ़ियां नूं याद आउंदा है। बगौर मुताला करके देखना,
कुछ एक थोड़े जिहा 90% ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨਾ याद ਆਉਂਦਾ है, 5-6% ऐसे भी ने जवानी ਨੂੰ याद करते हैं। ਅਸੀਂ जवानी च इंज करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इसका मतलब है बुढ़ेपा गलत है, तां ही जवानी याद आ रही है, बचपना याद आ रहा है, वरना बुजुर्गी ते महान है, बुढ़ेपा ते महान है। बचपन दीयां गलतियां ते जवानी दी गलतियां तो मनुख बहुत कुछ सीख सकता है, ते जो गलतियां तो भी नहीं सीख सकता वो किसी को नहीं सीख सकता। पता है महापुरुष की कहा करते ने, मनु ने एक गल बड़ी गजब दी कही है। वो कहता है जो अपनी ही आत्मा तो अपनी जमीर तो शिक्षा ले लवे, इहदे पूर्वले संस्कार कोई बड़े परबल ने और ये जन्म तो ही संत है। अपनी जमीर तो प्रेरणा ले लेंदा है, अपनी आत्मा तो प्रेरणा ले लेंदा है। ते जो गुरु पीर पैगंबरां तो सही रस्ते की प्रेरणा लवे, ये मनुख है। ये एक सियाणा मनुख है। जो गलतियां तो प्रेरणा ले लवे, ये मूड है, लेकिन फिर भी मनुख है। पर जो गलतियां तो भी प्रेरणा ना लवे, पशु है बस। ये तो मनुखता तो भी थल्ले, जीवन भर गलतियां कीतियां, गलतियां तो भी नहीं सीखिया। जिंदगी भर भुल्लां कीतियां, भुल्लां तो भी नहीं सीखिया। और वाकई अगर बुढ़े नो बचपना याद आ रहा है तो नहीं सीखिया। अगर इस बुढ़े नो जवानी प्रभावित कर रही है तो कुछ भी नहीं सीखिया। जिंदगी अजाई गवाई है इसने, जीवन व्यर्थ किया। इसे नूं कह देंदे ने शायद धुप दे केस चिट्टे कीते ने इसने, कुछ भी नहीं है। ये गलतियां तो भी नहीं सीखिया। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, नकद जिंदगी है जो मुंह दे श्वास है, और जो मुंह दे श्वास है उसदे जी रहा, उते समाधि लीन है, उते हर वक्त आनंद च है। और इस तरह दे मनुख दी जिंदगी च काल नहीं आउंदा, समा नहीं आउंदा। कबीर कहंदे ने मेरी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है। कहंदे ने रावण ने काल नूं अपने पलंग दे पावे नाल बन के रखिया सी। रामायण दी कथा, रावण ने काल नूं मंजे दे पावे नाल बन के रखिया। बचपन दे जद असीं कहानियां सुनदे सी या कदी रामलीला वेखदे सी, मौत नूं बई पावे नाल बन के रखिया, पलंग दे पावे नाल बन के रखिया। लेकिन गल ये नहीं, इस गल नूं खोलिया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। चौबोले महला पंजवा, ये ऐसी बाणी है जिहते सतगुरु ने राग नहीं दर्ज किया। सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की रागां दे च नहीं है, जपजी साहब ते राग नहीं है। संस्कृति श्लोक रागां तो बिना ने, गाथा फुने छंद चौबोले, गाथा ये सारियां बाणियां रागां तो बिना ने। फिर कबीर फरीद दे श्लोक भट्टां दे सवैये, फिर श्लोक 12 तो वधिक, पहले पातशाह दे श्लोक तीजे चौथे पंजवें नावें दे श्लोक रागां तो बिना ने। एक चौथाई बाणी दा रागां तो बिना होना कुछ कारण ते है। दरअसल ये बाणियां विचारण वालियां ने, ते जिन्हां जिन्हां दे ते राग दर्ज है, कीर्तन करना, गायन करना, कीर्तन करके उस नाल जुड़ना है, विचार करके उसनूं समझना है। जिन्हों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उन्हों समझना है। बस इन्नी गल है। चौबोले महला पंजवा, सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, इतना गहरा तपीश्वर कि उन्हें शीस अपना कट के शिव जी दे अगों रखे। 10 सिरां वाला कहंदे ने
मैं अर्ज करा इस तरह ना समझ लेना कि ਉਹਦੇ कोई 10 सिर सन। सोचनी इतनी महान सी, विचार इतने प्रबल सन, यादां इतनियां प्रबल सन कि जो 10 सिर सोच सकते ने, वह कला सोचता सी। और इसका सबूत मिलता है कि चारे वेद उसनू जबानी कंठ सन, वह जबानी पाठ करता सी, सामने रख के पाठ नहीं करता सी। मैं देखे है सारी जिंदगी कई कीर्तनी है शब्द गायन करते हैं, मेरे ख्याल सैकड़े दफा गायन किया होएगा, अजे भी लिख के अगों रख देन, चेते नहीं, याद नहीं। सारी जिंदगी पाठ किया है पर अजे भी गुटके की लोड़ है। न जपजी कंठ है, न जाप साहब कंठ है, न सवैये कंठ ने, न आनंद साहब कंठ है, न चौपाई कंठ है, अजे भी गुटके की लोड़ है। तो सारी जिंदगी करदा की रहे, पढ़दा तो सारी जिंदगी रहे। इसका मतलब चेता हाफजा तेरा इतना कमजोर कि रोज पढ़ के भी तेनों एक पंक्ति चेते नहीं हो सकी। और हैरानगी आउंदी है उदों मैनू कि एक शब्द नूं हजारां दफा गाया होवेगा, 30-40 साल तो गा रहे हैं, पर अजे भी लिखे हुए दी लोड़ है वाजे ते। चारे वेद जबानी कंठ ने रावण जबानी पाठ करता है। तो इथों गल स्पष्ट हो गई कि मन बड़ा एकाग्र होवेगा, याद शक्ति बड़ी तिखी हो जाती है अगर मन दे टिकाव होवे। ते मन चंचल चल ही रहा है तो खिमा करनी खिन खिन दे भुलेगा, कुछ भी चेते नहीं, भुलक्कड़ होवेगा, बिल्कुल भुल जाएगा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, चेते शक्ति, विचार शक्ति, सोच शक्ति रावण दी बड़ी प्रबल, उपासना इसकी बड़ी महान। और जो इतनी उपासना करे तो उसदे कोल आनंद ते होवेगा, रस ते होवेगा, तो आनंद दे समा खो जाता है। कई दफा कोई संगीतकार ऐसी संगीत की धुन अलापदा है, लोकी कहते ने इसने ते समय नूं बन के रख दिता, भाव समा खो गया। कदी कोई कवि अपनी रचना इस ढंग नाल पेश करता है और उस दे इतनी गहराई आउंदी है, श्रोते कह देंदे ने इस कवि ने ते समय नूं बन के रख दिता, वक्त रहा ही नहीं, समा रहा ही नहीं। कदी कदाई पाठ करदियां ऐसा मन जुड़े, समा खो गया, कुछ नहीं चेता रहा। घंटा इंज बतीत होया जिवें 1 मिनट। तो बाकी ये 59 मिनट किथे चले गए, खो गए, समा खो गया, नहीं रहा समा। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, कहां बसे निरंकारा। रावण दा मन ऐसा टिक जांदा सी वेदां दे पाठ दे ते ये मंत्र जपदा सी ओम नमः शिवाय। शिव जी दा उपासक सी, ओम नमः शिवाय इन जपदा सी। और जप इसका कोई ऐसा नहीं सी कि 10-20 मिनट आधा घंटा जपना। जब जपन लगना है, अगर रस दे च डुब गया तो 4-4 दिन जपते रहना। इस तरह का सी पुरुष, अभयासी, नाम अभयासी। सियाणा भी बड़ा सी। इहदे जमाने च लंका ने उन्नति इतनी की सी कि चंद सुरत जाके तखत रसोई, बसंतर जाके कपरे धोई। सूरज दियां किरणां नाल उसदे रसोई दे चुल्हे सीधे जलदे सन। ये सौर ऊर्जा ते लोकी अज वरतों दे च लै रहे ने, पर इसका जिक्र उदों दा है भी रावण इस तरह करदा सी। खुद ही लंका च ऐसा सी उस दे वक्त। इतना रस ते इतना आनंद दे च उसदी दुनिया च समा खो गया सी। काल नूं, समय नूं उन्हें मंजे दे पावे नाल बन के रखे, इस तो मौत ना लेना मुराद। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, यानी इंज कहो कि भारत विच इको ही महापुरुष गुरु अर्जन देव जी, जिन्हां ने रावण नाल इंसाफ किया, वरना किसी ने भी नहीं किया।
सतगुरु कहते ने सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी। शिव जी की उपासना करदियां करदियां ऐसा लीन होया है, ऐसा मस्त होया है, भेटा की रखा, सब कुछ तुच्छ प्रतीत होया, सीस कट के अगों रख दिता। सब कुछ फिजूल प्रतीत होया। सीस महान है, ये कट के अगों रखिया ते ओदा एक सिर 10 सिरां वर्गा। बड़ी सोचनी, बड़ी यादां। भारत दे एक होर संत, एक होर ऋषि होया जिन्हों सहनसर बाऊ कहते हैं, 1000 बावां वाला। उदी 2 बावां दे इतनी ताकत जिवें 1000 बावां। यानी अगर 1000 मनुख उसदे मातात ने, उसदे काबू च ने, उदियां 2 बावां 1000 मनुखां नूं काबू च कर सकदियां ने, तो 1000 बावां वाला आपे ही हो गया। शाहजहां औरंगजेब नूं जो चिट्ठी लिख देन जेल दे छां, वो कहते दी रोज लख सवार बोदम इमरोज मोहताज यक का सयावम। है मेरे बच्चे औरंगजेब, एक दिन ओ सी मेरी जबान तो एक बोल निकलदा सी ते 1000 मनुख सलाम करके झुक के मनण नूं तैयार सन। अज मैं 1000 दफा बोला, कोई एक भी सुनन नूं तैयार नहीं, कोई एक भी मनण नूं तैयार नहीं। अज मेरे बोलां च कुछ भी नहीं, अज मेरी जबान दे च कुछ भी नहीं। किसी वक्त मेरी जबान उस च निकलिया होया एक बोल 1000 मनुखां नूं सजदे करन ते मजबूर कर देंदा सी। 1000 दे हथ जुड़ जांदे सन। अज नहीं। सहनसर बाऊ लगदा है बड़ा सूरवीर होवेगा, बड़ा शक्तिशाली होवेगा। 10 सिर 10 सिरां वाला, जो 10 सिर नहीं सोच सकते वो रावण सोच सकता सी। जो 10 सिर चिंतन नहीं कर सकते वो कला कर सकता सी। तदी ते उसनूं 4 वेद जबानी कंठ ने। मैं फिर अर्ज करा, सारी जिंदगी पाठ करदियां कईयां नूं हो गए ने जपजी साहब कंठ कोई नहीं, जाप साहब कंठ कोई नहीं। तो इसका मतलब है चित ला के कदी पढ़िया ही नहीं। इस वास्ते वो चित का हिस्सा नहीं बने, कुछ भी नहीं। और मैं यही अर्ज करा, पढ़ना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। सुनना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। जपना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए। चेता जुड़ गया तो पाठ दे च भी समा खो जाएगा, खो जाएगा, नहीं रहेगा। मैनू एक बहुत पुरानी घटना चेते आई है। मैं बाबा बलवंत सिंह हुणां नाल कोई 8-10 साल रहा। व्याकरण दे बड़े पंडित सन, निर्मले। ये सन 73 दे बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे अमृतसर दे चलाना कर गए। भुवनेश्वर की गल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कटक। सवेरे वो कथा करते होंदे सन। उन्हां दिनां च मैं उन्हां कोल विद्यार्थी के रूप में पढ़दा सी ते शाम नूं भावें मैं भी कथा करदा सी। उस दिन संत प्यारा सिंह जी ने आना सी। उन्हां दे मित्र सन, बुजुर्ग सन ते वो भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे बड़े पंडित। ते मैनू कहण लगे, 2 सिंह जिहड़े जा रहे हैं उन्होंने लैण वास्ते ट्रेन स्टेशन ते, तू भी नाल चला जा। मैं ठीक है, चले जाने। वापस आए, बाबा जी अपने कमरे च मिले तो मैं सुभावक पूछ लिया, महाराज कथा हो गई? कहने हाँ, खप के आ गया। मैं कहा हद हो गई, खप के आ गया। इस तरह के शब्द मैं पहली दफा सुने। तो मैं क्या, मैनू ते ये चोट लगी है बड़ी, आप दे ना बोला तो खप के आ गया। कह लगे हाँ मस्कीन, तू नहीं समझेगा, जब कथा हो जाती है तो बंदगी है,
जब करनी पैंदी है तो खपना ही है और कुछ भी नहीं, खपना ही है। जब पाठ हो जाता है तो बंदगी है, तो जब करना पैंदा तो खपना ही है और कुछ भी नहीं। जब कीर्तन हो जाता है तो बंदगी है, जब करना पैंदा तो खपना ही है और कुछ नहीं। जब कीर्तन की स्रोत हो जाती है तो बंदगी है, तो जे ना होई तो खपना ही है। उदों मेरी समझ च नहीं आई सी गल। मैं सोचदा सी चलो हुण 80 वरियां दे हो गए ने, अनोड़ियां गल्लां करन लग पैना। यकीन जानो मेरी शरधा नूं चोट लगी सी। मैं कहा 80 साल दे हो गए ने, बिरद बहुत हो गए ने, अनहोणियां जिहां गल्लां करन लग पए ने। मैं संगतां कोल पुछया, मैं कोई खास घटना घटी है? कथा करदे नहीं जी, कहंदे घंटा बहुत सोहणे आराम नाल कथा करके आए ने। मैं कहा बाबा जी ते खपना ही कही जांदे ने, उन्हां दे अपने मन की बिरती नहीं जुड़िया होवेगा मन, नहीं कागरता बनी। लेकिन गालबन 5-10 साल जब इस हादसे नूं होया लंघ गए तो मैनू एक समझ च आई ये गल, पता नहीं तुसीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। अक्सर रोज खपना ही आउंदा है, बंदगी ते किसे किसे दिन आउंदी है। ये भी महसूस करना, किसे किसे दिन आउंदी, चाहे वह पाठ है, चाहे बाकी दा कर्म कांड है, चाहे सेवा है। सेवा दे सरूर आ गया बंदगी, नहीं तो खपना ही है और कुछ नहीं। पाठ दे च मन जुड़ गया है तो बंदगी, नहीं तो थकेवा अकेवा और कुछ भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਤੇ थकना ही टुटना होगा और की है। और फिर मैनू होर बचन भी उन्होंने दे चेते आए, बंदगी उसकी बख्शिश है, खपना साड़ी मजबूरी है। फिर इंज भी मैनू चेते आई गल, ये भी ठीक है, उदों मैनू नहीं आई सी समझ। बंदगी उसकी बख्शिश है, उसकी देन है, उसकी रहमत है कि खपना साड़ी कमजोरी है, साड़ी मजबूरी है। और यकीन जानो मैनू उदों इंज प्रतीत होया सी बुढ़े हो गए बहुत, 80 तो भी टप गए ने, ते 17-72 की जिहड़ी गल है वो मैं कह इन्हां ते लागू हो गई है। हुण कथा नूं भी खपना कहण लग पैना, पाठ नूं भी खपना कहण लग पैना। लेकिन बाद विच मैनू समझ आई, पाठ करदे अगर मनुख थक गया, टुट गया, तो ये खपना ही है। पाठ करदे पता नहीं कितने सालों की थकावट लै गई, कितने जन्मां की थकावट लै गई, कोई सरूर तारी हो गया। ये बंदगी है, यही बंदगी। और किसनों बंदगी कहते हैं? उसदी रहमत है, उसदी बख्शिश है। नहीं तो लोकी सिर ढा के मत्थे ते वट पा के होके भरदे थानू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मिलणगे। डिगे हुए सिर, डठे हुए सिर, बोझल सिर, चिंता नाल दबे हुए, माजी दियां यादां विच भरे हुए, यही कुछ होंदा। और की कहंदे ने, रावण दी दुनिया दे समा नहीं सी, वक्त नहीं सी। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। इतनी उपमा। पर इसनों मूर्ख क्यों किया गया है? सारियां बुराइयां इस नाल क्यों जोड़ियां गई ने? और शायद दुनिया विच इतनी बेइज्जती किसी दी भी नहीं हुई जितनी रावण दी। साल दे साल भारत दे जलाया जाता है, साल दे साल। चलो एक दफा किसी का पुतला जलाया, 2 दफा जलाया, साल दे साल, हजारां सालां तो जलाया जा रहा है। और पता नहीं कदों तक जलाया जाएगा। वो बेचारा कदों का रुखसत हो गया, पर अजे भी जला रहे हैं, अजे भी उसनों बेइज्जत कर रहे हैं। भारत विच किसी की बेइज्जती करनी होवे ना, पता की है तरीका? उहदा पुतला जलाओ। हिंदुस्तान विच यह ढंग है। बाकी तो मुल्कों का मैनूं कुछ पता नहीं है, पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान विच, बांग्लादेश विच, एशिया के कुछ होर मुल्कों विच किसी की बेइज्जती करनी, उहदा पुतला जलाओ। और पुतला जलाण तो मुराद तेनों असीं इनकार करते हैं, नहीं मनते तो कुछ भी नहीं। जला दिता असीं तेनों, खाक कर दिता असीं तेनों, या खाक कर देंगे तेनों।
यानी नफरत है, घृणा है। तो साल दे साल इसनूं जलाया जाता है, इतनी घृणा, इतनी घृणा। पता है क्यों? हार गया। जो हार जाए शैतान बन जाता है, जो जित जाए भगवान बन जाता है। कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, खुशामदी हमेशा जेतू दे आले दुआले घुमदे हुंदे ने, हारे हुए दे नहीं। हारे हुए नाल कौन चलदा है? हारे हुए दे पिछे कौन चलेगा? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, सोचण दे धनी सब जेतू दे पिछे चलते ने। हार हो गई सी। और आप सुन के हैरान हो गए। इस विषय ਨੂੰ मैं लमकावा ना। विद्वान मनते ने हिंदुस्तान दे, रावण राम तो नहीं हारे, रावण अपने भरा तो हारे है, विभीषण तो। विभीषण ने जो रावण का भरा सी सारे सीक्रेट आउट कर दिते, सब कुछ दस दिता राम ਨੂੰ। इस तरह मर सकता है, सब कुछ दस दिता, सारा राज उगल दस दिता। ते पता है हिंदुस्तान दे की कहंदे ने, मनुख दुश्मन की मार तो बच सकता है, भरा की मार तो नहीं बच सकता। बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। उन्हें तो नेड़ियों वार करना है। एक 500 गज की दूरी तो गोली चलाए, पता नहीं लगनी है कि नहीं। तो एक मत्थे दे उत्ते रिवाल्वर रख के गोली चलाए तो लगनी ही लगनी, वो तो खता नहीं जानी। भरा दा वार बिल्कुल नेड़े, बहुत नेड़े, खता नहीं जाता, खाली नहीं जाता। रावण की मौत विभीषण के हथों हुई, भरा के हथों हुई। इंज कह लीए सारे राज जो है दस दिते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज को कहना पिया है, शिवां दा भगत और इतना वड्डा भगत। अंदर ख्याल आया की भेंट करा, तो शीस कट के रख दिता। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, शीस बड़े कर वैसन दीजे। ऐसा कोई कर भी सकता है? रावण ने करके दिखाया, उसने करके दिखाया। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, हथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों च, गुफ्तम के जां दे हम, एक अरजोई है, ये शीस कदमां दे च रखदे आ तुहाडे। क्यों शीस कट के क्यों रखना चाहना है? शीस दे बदले तेनों की चाहिए? तू व्यापारी दा पुत्र है, दीवान है, सियाणा है, कोई अपनी जान एवें ते नहीं देंदा। की चाहिए तेनों बदले? भाई साहब कहते ने, गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाहे तो, तू एक मेर दी निगाह कर दे, बस इस दे बदले शीस ले। जीवना ही नहीं चाहते, असी तो जी रहे हैं एक निगाह वास्ते, असी तो जी रहे हैं एक मेर दी निगाह वास्ते। गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाहे तोए, गुफ्ता मया ने माव तो सौदा नमे शब्द। भाई साहब कहते ने, मेरे मुरशद ने आख्या सौदा सानू मंजूर नहीं हो सकता। जान भी परमात्मा की रहमत की कीमत नहीं है, बख्शिश की कीमत नहीं है। फिर तो जान वड्डी हो गई, परमात्मा की रहमत तो कुछ भी ना हुई। जान भी कुछ नहीं है, ये सिर भी कुछ नहीं है। फिर भी ये रावण अजीम है, इतना आनंदित है, इतना रस दे है, उसकी दुनिया च समा नहीं है, हर वक्त मगन। दूसरी कि उसकी कोई गलती पहले लक्ष्मण तो हुई है, उसकी भैन की नक कट्टी। उन्होंने दिनों स्वयंवर ये स्वयंवर की प्रथा आम सी, बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सन। स्वयंवर का मतलब ही इन्ना है, स्वयंवर खुद चुनना है, आप चुनना है। मां बाप चुनाव नहीं करेंगे, समाज चुनाव नहीं करेगा, बच्ची खुद चुनाव करेगी। यह गल वखरी है। सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, संयोगता स्वयंवर का जिक्र है, क्योंकि इतिहासक स्त्रियां ने सारियां दे स्वयंवर होंदे सन।
जिवें असीं कह दिंदे आ कि गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार दे मुगले आजम अकबर आया और वो लंगर दे बकायदा बैठा है, क्योंकि सतगुर दा हुक्म सी पहले पंगत पाछे संगत। वरण वंड नूं तोड़ना सी, जात पात नूं तोड़ना सी, ऊंच नीच नूं तोड़ना सी, पहले पंगत। तो पंगत दे बैठा। तो असी बड़े माण नाल इस इतिहास नूं बयान करते हैं, क्योंकि इतिहासक मनुख है। हजारां मनुख रोज आंदे सन, पंगत दे बैठते सन, कोई जिक्र नहीं। पर अकबर का जिक्र, क्योंकि अकबर इतिहासक मनुख है। तो द्रौपदी इतिहासक स्त्री है, सीता इतिहासक स्त्री है। तो स्वयंवर का उन्हां दा जिक्र है, सब दे स्वयंवर ही आउंदे सन। स्वरूप नखा ने वर चुन लिया लक्ष्मण नूं स्वयंवर। जयमाला पहनाण लगी लंबी चौड़ी गाथा, बदले गुस्से नक कट दिती। सारी जिंदगी लई किसी नूं करूप कर देना ये कित्थों दे इंसाफ की गल है। और जिथे नक कट्टी उत्थे शहर अज वसिया, उस शहर का नाम है नासिक। नासिक महाराष्ट्रीन जबान विच नक नूं नाशका करके कहंदे, नाशका नासिक। उत्थे मंदिर भी है स्वरूप नखा का, नक कट्टी हुई दिखाई गई है। दासो देख के आया ते स्वरूप नखा दे नाम दे उत्ते शहर है नाशिक, उसे दे नाम ते इत्थे ही नक कट्टी। तो ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो कोई दया वाली प्रेम वाली गल नहीं। दिव दृष्टि नाल बदलना चाहिए सी, समझा बुझा के बदलना चाहिए सी। वो तो उस जमाने की बनी हुई प्रथा के मुताबिक अपना वर चुनदी है, नक कट्टण की तो लोड़ नहीं सी। ते जे बदले की भावना रावण के अंदर पैदा भी हो गई तो मजबूरी है। एशिया दे ऐसा मानसिक मंडल है कि मनुख बाकी संबंधियों की तोहीन बर्दाश्त कर सकता है, भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता। ये एशिया का कोई वायु मंडल, उत्थों की सभ्यता, उत्थे दा समाजिक जीवन भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता, उहदी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा, उहदी खातर लड़न मरन नूं तैयार हो जाएगा। तो ये तो एक राजे की भैन सी, रोंदी होई गई। तो कुदरती गल है, बदले की भावना पैदा हो गई। बस बदले की जिहड़ी भावना पैदा हुई, यही इसदे कोल गलती हुई, यही बोल है। पर जे पहल नूं देखिए तो पहल इसने नहीं की थी। इसकी जिंदगी बिल्कुल पवित्र। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस दे पक्ष दे खड़े होवन, वो मनुख मामूली नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। भारत दे अचेतन मन दे सत्कार अजे भी है थोड़ा जिहा रावण का। दिन भर पुतला उसका रखते ने, सारा दिन मत्था भी टेकते हैं। हद हो गई, शाम नूं इसकी बेइज्जती करनी है, इनू जला के खाक करना है, तो सारा दिन मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी रखते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। मैं देख के हैरान होना, बई हद हो गई, मत्था पे टेक देना। अंदर अचेतन दे ख्याल है ब्राह्मण सी, शिवां दा भगत सी, सियाणा सी, सूझवान सी। दिन भर मत्था टेकते ने, शाम नूं जला देंदे ने। बई इहने राम नाल बेइंसाफी कीती, उहदी पत्नी चुक के ले गया। लेकिन पत्नी नूं अशोक बाटका दे च रखिया है, कदी घर दे च नहीं लेके गया। और उसनूं एक पवित्र देवी की तरह रखे, अग्न परीक्षा लई राम ने भी पवित्र है। और जिस दिन दी श्री राम ने सीता की अग्न परीक्षा लई, भारत देश ते अजे तक अग्न परीक्षा चल रही है। हर रोज किधरे ना किधरे स्त्री जलाई जाती है। यह भी मैं अर्ज करा हिंदुस्तान दे मेरे देखे मेरे पढ़न दे ते कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उत्थे आउंदा, किसी न किसी सूबे किसी न किसी शहर में कोई स्त्री जलाई जाती है जिंदा। और अक्सर नूंहां ही जलदियां ने, धीआं नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, लोग नूंह नूं जला देंदे। हैरानगी आउंदी है गल। पहले ये गल पंजाब दे च नहीं सी, पर हुण पंजाब दे च भी है।
और किधरे मुल बच्चे का घट पे है तो हुण नूं जलेगी, जिंदा जलेगी, जला दी जाएगी। हद हो गई। जिसने अपनी बच्ची दे दी उसको होर की मंगदे हो? अगर वो बच्चे का मुल पूरा नहीं ले आई तो फिर जलाई जाएगी, जलेगी। और हर रोज ऐसा होता है, अग ने ही फैसला करना है पवित्र है कि अपवित्र है। तो फिर जलाओ किसी धार्मिक मंदिर नूं, बच गया तो पवित्र है, जल गया तो अपवित्र है। लाओ किसी दे घर नूं अग, जल गया तो अपवित्र है, बच गया तो फिर पवित्र है। किसी कौम नूं अग लाओ, जल गई तो अपवित्र है, बच गई तो पवित्र है। फैसला तो अग ने करना है, और किसी ने थोड़ी करना है। तो खैर ये तो सुभाविक विचकार जो है गल आ गई। समय नूं, काल नूं रावण ने मंजे दे पावे नाल बन के रखे। खुदी दुनिया च काल नहीं है। इतने आनंद मगन अकाल हैं, अजाल हैं। एक परमात्मा दी दुनिया च काल नहीं है, समा नहीं है। एक जो परमात्मा नाल जुड़ गया उदी दुनिया दे च काल नहीं है, समा नहीं है। मेरे ख्याल इतना जिहा अनुभव ते बथेरियां दा होवेगा। जद कदी मनुख किसी रस च बैठा होंदा, चाहे कोई भी रस है, ते रस सारा ही परमात्मा है। चाहे भोजन का रस है, चाहे संगीत का रस है, चाहे नृत्य का रस है। परमात्मा पता नहीं कितने रसां दे राही प्रगट होंदा है, यह भी महसूस करते हैं। किधरे रंग का रस है, किधरे रूप का रस है। ठीक है, रस वक्ती ने, एक सदैवी रस स्वयं परमात्मा, उदा नाम, उदी पूरन होंद। जद भी मनुख थोड़ा जिहा रस दे च बैठा होंदा है, घंटा इंज लंघिया जिवें 1 मिनट। बेरसी दे च बैठा है, 1 मिनट इंज लंघिया जिवें 4 घंटे। समा ते खो जाता है। रावण की दुनिया च समा खो गया, परमात्मा की दुनिया च समा नहीं, क्योंकि रस है। रस दे च काहदा समा? बेरसी च समा हुंदा है। आनंद दे च काहदा समा? दुख दे च समा हुंदा है। अकाल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, अकाल हैं, अजाल हैं। काल जाल जम जो न साके, सच का पंथा थाट्यो। धन गुरु अमरदास जी महाराज। जिस दिन दे असी सच दे पंथ दे चले हां, काल खो गया, वक्त खो गया, समा खो गया, समा नहीं है। पर जो दुख दे च जी रहा है, बेचैनियां च जी रहा है, परेशानियां च जी रहा है, काल दे च जी रहा है। एक एक मिनट उहदे लई भारू है। और महाराज कहते दिन भी उसदे लई जाल है, रात भी उसदे लई जाल है। वो दिन दे च भी फसिया रहेगा, रात दे च भी फसिया रहेगा। मजाल परम आनंद माण सके। किधरे दिन दी मजबूरियां ने प्रभु चिंतन नहीं करन दिता, किधरे रात दी गुलामी ने इसनों चिंतन नहीं करन दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, जाली रैण जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मूड़े कवन गुणी। वो जो परमात्मा है उहदे च काल नहीं है, भय नहीं है, वैर नहीं है, अकाल, काल भी नहीं है। उसदी दुनिया दे काल भी नहीं है। पर किधरे ये ना सोचा जाए तो कल्पना मात्र ही हो सकता है। ऐसा किस तरह हो सकता है? तो महाराज कहते हैं मूर्त मूर्तिमान है, कल्पना नहीं है, ख्याल मात्र नहीं है, मूर्त है, मूर्तिमान है। ते मूर्त दे आखदियां एकदम ख्याल पैदा होवेगा, फिर ये मूर्ति किसी ने बनाई होवेगी। कोई तो इसका जन्मदाता होवेगा। तो महाराज एकदम कहते हैं सैभंग। ये संस्कृत का शब्द है स्वयंभू, अपने आप तो आप प्रगट होया है। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना, उदी साजना किसी भी नहीं की थी। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना, अपना विस्तार उसने आप किया है। अपनी बनावट उसने आप प्रगट की थी है। वो आप ही आप है। आकाए अजाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते उसनों जन्म देने वाला कोई भी नहीं। अजाए, उदी कोई मां नहीं, ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है।
वो किसी तो जमया नहीं है, वो किसी तो जो है प्रगट नहीं होया। अकाए अजाए अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, वो किसी दी कृत नहीं है। सैभंग स्वयं भू, अपने आप तो भू होया, प्रगट होया है। मूर्तिमान है पर अपने आप तो प्रगट होया है। तो इत्थे एक प्रश्न पैदा होएगा, चलो मूर्ति ते आउंदी है आकार, तो उसका वास्तविक आकार फिर की है? सगल भवन की मूरत एका, मुख तेरे टकसाला, सारा ब्रह्मंड उदी मूर्ति है और इसे मूर्ति दे चो बैठा है। किधरे भी ये संसार भी टुटिया होया ना समझ लेना, असी भी इतने नहीं हाँ जितना असी अपने आप को समझते पे हाँ। अगर ये पवन ना होवे तो असी नहीं हो सकते। तो पवन की दूरी विज्ञान कहता है 400 मील की बुलंदी तक है, अगों नहीं है। पर सिर्फ पवन करके थोड़ी, जे सूरज भी ना होवे तो असी नहीं हो सकते, उदी किरणा ना होन तो असी नहीं हो सकते। तो सूरज तक अपनी दूरी मन लीए नहीं, सूरज भी तां है कि महासूरज, अगर वो ना होवे तो सूरज भी नहीं हो सकता। ਉਹ महासूरज ਨੂੰ कोई होर महासूरज चाहिए उसके आसरे ते, और अखीर दे अरबां खरबां सूरजां तो बाद गल मुकदी है परमात्मा ते, ईश्वर ते। असी किधरों भी टुटे हुए नहीं हाँ। सूरज तो टुट गए तो असी रह ही नहीं सकते, इसका मतलब सूरज तक ते जुड़े हुए हाँ। ते सूरज महासूरज नाल जुड़े हुआ है, महासूरज होर महासूरज नाल जुड़े है, अखीर ते गल मुकदी है परमात्मा दी। तो परमात्मा अखंड है, इस तरीके नाल सारा ब्रह्मंड अखंड है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। टुकड़े टुकड़े ते मनुख ने कीता है, और मनुख दे टुकड़े मसनूई ने, बनावटी ने। समो ब्रह्मंड एक हो है, सगल भवन की मूरत एका, सारा ब्रह्मंड एक है। और हे प्रभु ये तेरी मूरत है, और यदि सिरजना तू आप कीती है। सैभंग स्वयं भू, अपने आप तो तू आप ही भू होया, आप ही प्रगट होया है, तेनों बनाने वाला जो है कोई नहीं। इत्थे तक विचार अगां सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, वो गुरु है, वो प्रसाद है। ये विचार मैं कल रात के समय आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा। एक मूल मंत्र आरंभ किया सी, एक एक अखर काफी वजाहत चाहता है, पर तुच्छ बुद्धि अनुसार जितना समा सी ते जितना विस्तार करने की, खुलासा करने की मेरे को समर्था सी गुरु की दिती हुई, उस हिसाब नाल थोड़े सामने रखा। अकाल उहदे च वकत नहीं है, पर किधरे कल्पना मात्र ना होवे ऐसा ख्याल पैदा हो सकता है। निर्वैर होना अच्छा है, निर्भय होना अच्छा है, आनंदित होना अच्छा है, पर कोई जरूरी है कि ये सब कुछ पैदा करने लई परमात्मा, ये किधरे कल्पना ते नहीं। तो साहब कहते नहीं, मूर्त मूर्तिमान है, उदी होंद है। कि जे मूर्त है तो फिर किसी ने बनाई है? तो साहब कहते नहीं, सैभंग स्वयं भू, वो अपने आप तो आप भू होया, प्रगट होया, वो आप अपने आप तो विस्तृत होया, उसका विस्तार किसी ने भी नहीं किया। वो ही गुरु है और वो प्रसाद है। एक एक शब्दां दे परमात्मा का एक एक रूप ते सुभाव गुरु नानक देव जी महाराज वर्णन करते हैं। बाकी जो दो शब्द रहिंदे ने, इन्हां दे विचार कल शाम नूं ते फिर परसों दोपहर की हाज़री भर के आप तो क्षमा मंगांगे, छुट्टियां मंगांगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, सारियां दी जिंदगी च ओ समा आवे जिन्हों अकाल कहते ने, समा खो गया, वक्त खो गया। ये सरूर, ये रस धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावन। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।